I hope you all are doing very well. So, in this session, I'm talking about evolution and cross validation. So, this video is gonna be different because in this video, I'll cover all about them in just a single video with the help of diagram and real life example. Why it's an important video? Because it's play a very important role in the field of practical machine learning as well as for your examination. Now, for examination, this type of questions are frequently asked. So please prepare before the exam. Now, why I am telling this? कि it's play a very important role in the field of practical machine learning. So after this image, you have a little bit idea. Now, listen carefully. Evolution and cross validation. Both are famous techniques and that help us to enhancing the model performance. So if you want to become a machine learning engineer and your work is developing a machine learning model, so what is your goal? Your goal, your model performance is become good. Your model predictions are good. Your model's accuracy, precision scores are good. So how can you do this? With the help of these two techniques. So one question comes in your mind, what is cross validation? So I'll give you a very simple definition. With the help of cross validation, we divide our dataset into two categories. What are the major categories? Like with the help of this diagram, you easily understood. We have a data set. We split our data, means we divide our data into two categories. Validation means test, and second is a training data set. So with the help of training data set, we train our model. Now, validate model means this कि we check some models evaluation. Evaluations have so many methods. We discuss one by one. So if our model accuracy is not good, so we say कि we want to use some another cross validation techniques for enhancing the model performance. So we use some other methods like k-fold, leave one out cross validation technique, hold out method, and star fitted fold cross validation techniques. So they are different type of techniques. If you don't know, so please continue the video till the last with me. After completing a video, you are able to understood all of them in a very simple manner. So our end goal is this कि we want to find a aggregate result for our solution. ठीक है, for our problem. So if our model is giving a aggregate result, so we say it's a final model and ready to deployment. So if you have a little bit idea about cross validation, so it's good for us. And don't worry, we discuss more brief in our doc section. Now here is a real life example. With the help of this image, you can easily understood cross validation. Cross validation is a technique in which we divide our whole dataset into two major categories. First is train and second is state. Now, test dataset acquire 20% of that whole data and train dataset assume 80% of a whole data. This method is known as hold out method of cross validation. It's a very basic method and I use this method in my iris flower classification project. If you don't watch it, so please, the link is in the description box. Go and watch those video and then come to this video. Now it's a time to know why do we need a cross validation. So before starting this document section, now I have a Hindi meaning about this term, evaluation and cross validation in machine learning. एवोल्यूशन का मतलब होता है आकलन करना. आप आपका मॉडल है, आप उसको अलग अलग मैट्रिक्स के ऊपर उसका आकलन करते हो. आप वो क्या मैट्रिक्स हैं अपन वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. मैं सारी चीजें आपको एक डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में बता रहा हूँ ताकि आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाओ, इजीली ग्रेप कर पाओ और एनी टाइम इन फ्यूचर आपसे कोई पूछे तो आप इजीली उसको बता पाओ, इंटरव्यूज में इन टॉपिक्स के ऊपर फ्रिक्वेंटली लिख पाओ. क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब तो हो गया मूल्यांकन करना और क्रॉस वैलिडेशन का मतलब हो गया पार सत्यापन करना. मतलब कि आप उसको फिर अलग अलग मेथड से और एनहेंस करते हो. सो दे बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब व्हाई वी नीड, सो आंसर तो वेरी सिंपल है.
evaluation and cross validation are a crucial step in assessing the performance of machine learning model. Assessing का मतलब होता है select करना, ठीक है. These techniques help us to understand how well a model is likely to perform on a unseen data. Now, यदि आपने प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट किया है तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपना एंड गोल है कि अपने जो मॉडल ट्रेन करा है वो अनसीन डाटा पे एक अच्छा परफॉर्मेंस अपन को दे. सो अनसीन डाटा पे यदि आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स इट अ गुड मॉडल. अब कुछ चीजें होती है अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी. अब इवोल्यूशन के ऊपर समझो. सबसे पहले उसकी डेफिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एसेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रेनेड मॉडल ऑन अ सेपरेट टेस्ट सेट. कॉमन इवोल्यूशन मैट्रिक्स इंक्लूड. कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं? लाइक यदि रिवर्स प्रोसेस में अपन चले तो पहली जो सबसे मैट्रिक्स आएगी वो आएगी कंफ्यूजन मैट्रिक्स. क्या होता है? अ टेबल डेट शो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. अब ये एक 2x2 की मैट्रिक्स टेबल होती है जिसके थ्रू अपन इजीली अपने जो मॉडल है उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स की हेल्प है, उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स की मिलकर उसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है. एग्जांपल के लिए फॉर अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स माइट लुक लाइक दिस. आप समझो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 रिप्रेजेंट फॉल्स एंड 1 रिप्रेजेंट ट्रू. तो यहाँ पे जो 1y, ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और इस वाला सेक्शन जो है वो आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू है. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ 50 इज अ ट्रू पॉजिटिव, मींस 1y1 में जो इंस्टेंस है उसको अपन बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव, एंड 1y0 में जो आपका इंस्टेंस है उसको अपन बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव, एंड 0 एंड 1 में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप बोलोगे फॉल्स पॉजिटिव, एंड 0 एंड 0 पे जो इंस्टेंस है उसको आप बोलोगे ट्रू नेगेटिव. सो दिस इज अबाउट कंफ्यूजन मैट्रिक्स. अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने मॉडल की कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जो एक प्रोसेस है, स्टेप है, उसको टेस्ट करते हो, ठीक है. अब यहाँ पे समझते हैं अपन कुछ वेरी सिंपल टर्म्स. एक्यूरेसी. अब एक्यूरेसी आप किसी मॉडल की कब चेक करते हो? जब आपके पास जो आपके पास डाटा सेट है वो बैलेंस डाटा सेट है, तो आप उसमें एक्यूरेसी चेक कर सकते हो. डेफिनेशन की बात करें, मेजर द रेशो ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड इंस्टेंस टू द टोटल इंस्टेंस. एग्जाम्पल के लिए इफ अ मॉडल करेक्टली प्रिडिक्टेड 90 आउट ऑफ 100 इंस्टेंस, द एक्यूरेसी इज 90%. एक और टेक्निक होती है प्रिसीजन, बट ये अपन यूज करते हैं इम्बैलेंस डाटा के लिए. इसकी डेफिनेशन पढ़ें, इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन आउट ऑफ द टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन. एग्जाम्पल के लिए ये सब क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है. यहाँ पे स्पैम क्लासिफिकेशन यदि आप मॉडल बना रहे हो और उसने 80 आउट ऑफ 100 ईमेल्स को प्रिडिक्ट कर लिया है, तो यू कैन से दिस मॉडल्स हैव 80% प्रिसीजन, ठीक है. रिकॉल क्या करता है? कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ योर मॉडल, मींस मेजर द प्रोपोर्शन of true positive instance out of the total actual positive. So I hope you understood. Now what is the F1 score? F1 score means the harmonic mean of precision and recall, providing a balance between two. So they all are a evaluation method that used for assessing the performance of a trained model. यदि आपको प्रैक्टिकली इन चीजों के बारे में समझना है, so please go and watch my iris flower classification project where I do this thing as a practical manner. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका इवोल्यूशन का स्टेप कंप्लीट. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कम अगेन, व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन. सो इसको भी अपन रिवर्स मैनर में पढ़ने वाले हैं, स्मॉल टू हाई एंड थोड़ा अच्छे मैनर में, लाइक बोले तो इजी टू हार्ड, ठीक है. अब क्रॉस वैलिडेशन क्या है? इज अ टेक्निक फॉर असेसिंग हाउ अ मॉडल जनरलाइज टू अन इंडिपेंडेंट डाटा सेट. अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डाटा सेट के ऊपर इट हैज टू प्रिवेंटिंग द ओवरफिटिंग बाय एंश्योरिंग द मॉडल परफॉर्मेंस वेल ऑन अ डिफरेंट सबसेट ऑफ अ डाटा. कॉमन क्रॉस वैलिडेशन मेथड्स इंक्लूड. आप समझो क्रॉस वैलिडेशन क्या है? एक टेक्निक है जो अपने मॉडल की जर्नलेबिलिटी को चेक करने पे हेल्प करती है. अब ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग क्या होता है? तो देखो, ओवरफिटिंग का मतलब होता है कि आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया और वो अनसीन डाटा के ऊपर अच्छा प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है, तो दिस प्रॉब्लम इज कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ ओवरफिटिंग मशीन लर्निंग मॉडल प्रॉब्लम. अब अंडरफिटिंग का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जिसको आपने ट्रेन कर लिया है और आप उसको प्रिडिक्शन के लिए उसी ट्रेनिंग डेटा सेट का कुछ पार्ट दे रहे हो और वो अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है. मतलब जो ट्रेन डाटा पे उसने मॉडल ट्रेन हुआ है उसी को वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है,
सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज अंडर फिटिंग मशीन लर्निंग मॉडल प्रॉब्लम। इसके लिए अच्छी चीज क्या होगी, यदि आपके पास लो वेयस है और लो वेरिएंस है, मतलब एक अच्छा बैलेंस मॉडल है, तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज है। अब रिवर्स मैनर में पढ़ना था तो सबसे सिंपल जो मेथड है वो है होल्ड आउट मेथड, जिसका मैंने यूज किया है अपना आयरिस क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर। सो यदि डेफिनेशन की बात करें, द डाटा सेट इज रेंडमली स्प्लिट इनटू अ ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट। This is a similar but less reliable method compared to the k-fold cross validation. So with the help of this image, you can easily grab this point. We have a data set. We split our data set with two categories, training and testing. So here is the code about this data set splitting. sklearn is a library. With the help, you can import the module train test, and this module easily split your data set as your requirement. अब X is a data set that contain 10 and 100 randomly numbers continuous, ठीक है। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इस कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा टेस्ट साइज कितना दिया है 0.3। इसका मतलब क्या होगा, होल डाटा सेट में से अपना 30% चल जाएगा टेस्ट में और 70% चल जाएगा ट्रेन में। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ठीक है। अब यहाँ पे इवोल्यूशन और क्रॉस वैलिडेशन किस लिए यूज होंगी, ensuring the model performance, preventing from overfitting and underfitting, understanding the model performance। अब मशीन लर्निंग के अंदर रिकॉल, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये चीजें भी यूज करनी पड़ेगी आपको आपके मॉडल की एक मैथमेटिकल फंक्शन को एक पार करने के लिए। सो आपने भी पढ़ा होल्ड आउट मेथड, जो कि काफी सिंपल मेथड थी। अब आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे मेथड लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LOOCV। इसका यदि सिंपल सी डेफिनेशन समझे तो ईच इंस्टेंस इन द डेटा सेट इज यूज्ड वंस एज अ टेस्ट सेट while द रिमेनिंग इंस्टेंस फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट। मतलब क्या हुआ, इसमें आपके पास जितने भी डेटा सेट होंगे उतनी बार आपका मॉडल ट्रेन होगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझो, फॉर अ डेटा सेट विथ 100 इंस्टेंस मीन 100 एलिमेंट्स, LOOCV विल ट्रेन द मॉडल 100 टाइम्स। बहुत ही अच्छा माना जाता है इस वाले क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक को, बट कंपाउंटेशनली ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज आप एक ही मॉडल को 100 टाइम ट्रेन कर रहे हो, मतलब कि आपको हाई मशीन चाहिए, थोड़ा आपको रैम रोम बड़ी चाहिए, तभी तो आप उसको 100 टाइम्स ट्रेन कर पाओगे। सो इट्स कंपाउंटेशनली थोड़ा एक्सपेंसिव है, but each time leaving out one's instance as the test set. So here is an example with this image. You can easily grab this point. Now we have a test data set. We have a training data set 1, 2, 3, and there are 3 instances. Means our model trained 3 times 1, 2, 3, and we get our final result. तो ये काफी अच्छा होता है, बट इसका अपन ज्यादातर यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हार्डवेयर एरर, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना सेकंड पढ़ना है वो पढ़ना है क्रॉस validation with the help of k-fold. So the definition is very simple. The data set is divided into k equally sized fold. K is a number that you assume the model is trained on a k minus 1 fold. The end test on the remaining fold. This process is repeated k times with each fold serving as the टेस्ट सेट वंस। तो इसमें क्या होता है, आपका डाटा सेट पार्ट्स में डिवाइड होता है और उन्हीं पार्ट्स को आप बोलते हैं फोल्ड, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे इस इमेज को समझो और इस डेफिनेशन को समझो। 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, यहाँ पे अपने k की वैल्यू है 5। द डाटा इज स्प्लिट इनटू अ 5 पार्ट्स। द मॉडल इज ट्रेनेड 4 parts and test on the remaining parts, iterating through all parts. Very simple. I hope you grab it. Now we have a data set with the help of 5 fold, ठीक है। तो k अपन 5 डेटा सेट को लेंगे एज अ टेस्ट सेट और बाकी सबको करेंगे ट्रेन। ऐसी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि अपना डेटा सेट फुल्ली ट्रेन नहीं होता है। तो यहाँ इस स्टेप की तो समझो, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, एंड दिस इज लास्ट फोर्थ आइट्रेशन। So this is all about k-fold cross validation technique. It's a very useful in a real life example and also useful for imbalanced data set. Last but not least, stratified k-fold cross validation. Similar to the k-fold, but ensures each fold has a similar distribution of the target variable. Now, if you don't know what is target variable are like a output, ठीक है, on our machine learning model. This is especially useful for a imbalanced data set. Why I am telling you this thing? With the help of this example, you notice
in a data set with 90% non-spam and 10% spam emails. Each fault is stratified. K fault will maintain this ratio. अब यहाँ पे रेशो देखने के लिए आप समझो, ये आपका जो ट्रेन होगा मॉडल वो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की तरह ही होगा, बट स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ, जहां पे आपका जो क्लास वेरिएबल है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो चेंज नहीं होगा। मींस कि यहाँ पे आप नोटिस करो द वैल्यू इज नॉट चेंजेज इन दिस इमेज, ठीक है, और मॉडल आपका एज इट इज ट्रेन हो जाएगा। यदि आपके पास इम्बैलेंस डाटा सेट है तो इसको बैलेंस तरीके से ट्रेन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल टाइप ऑफ क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। सो आफ्टर कंप्लीटिंग अ वीडियो, आपने इस वीडियो में रिकॉल, प्रिसीजन, F1, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा, एंड देन अपन ने देखा क्रॉस वैलिडेशन की कुछ फेमस टेक्निक्स। वो आर टेक्निक्स के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, स्ट्रेटिफाइड क्रॉस validation techniques, leave one out cross validation techniques, and very common hold out method. So I hope you able to understood these things is very important while doing a practical machine learning as well as for your examination. You can draw as it is diagram in your exam if the diagram are asked in your exam. So after completing the video, what is the conclusion of this video? Very important point. Evolution and cross validation are essential for building robust machine learning models. They help ensure that the model not only perform well on the training data but also generalize well to new unseen data. By using the various evolution metrics and cross validation techniques, we can gain a comparative understanding of our model performance and reliability. So I hope this video is gonna be helpful for you. If this video is helpful for you, so please do share, do like, do comment, and if any questions comes in your mind, so please comment. I'll also try to solve your query in the comment section, and don't forget to subscribe to my channel. All the important links are in the description. So we will meet in a next video. Bye bye.